वो खुद ही तय करता है मंजिल आसमानों की। दिलावर भाई, वो खुद ही तय करता है मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। समझ में अगर आ गया हो, रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। इन्होंने कहा अभी कि मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं छोड़ा। ये 1000 मेगावाट इंशाअल्लाह हम तय करके दिखाएंगे अगले सालों के अंदर इंशाअल्लाह। एक आदर्श रास्ते की खोज में मुख्तार भाई, ज्यादातर हम एक आदर्श रास्ते की खोज में दिनों दिन इंतजार करते रहते हैं। शायद वो अब मिलेगा, मगर हम भूल जाते हैं कि रास्ते चलने के लिए होते हैं शौकत साहब, रास्ते चलने के लिए होते हैं, इंतजार के लिए नहीं। शौकत साहब, है सिहाई भीगी मगर, साई भीगी मगर, ऐसा अपना लहू मिलाना बाकी है। सिहाई अभी भीगी है लेकिन अपना लहू मिलाना बाकी है हौसले भी बुलंद, है हौसले भी बुलंद, समंदर में अभी दीप जलाना बाकी है। जो तूने दिया, जो तूने न दिया और जो तूने देकर ले लिया, जो तूने दिया, जो तूने न दिया और जो तूने देकर ले लिया, उन सब पे तेरा शुक्र है। क्योंकि जो तूने दिया वो नेमत थी, जो तूने ना दिया वो हिकमत थी, और जो तूने देकर ले लिया वो मेरा इम्तिहान था। या अल्लाह, या अल्लाह, वरना कहां देखी थी इतनी ऊंचाई, तूने तो हमें ही ऊंचा बना के छोड़ दिया। Today, each and every cell of my body is insisting me to say नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, हमें बख्श दिया आपने जिंदगानी। Today we take the oath and give our promise that we shall make all the possible efforts to realize our national goals, to take our company, our investor, our KP family, our team to the highest point of the sky where world will see and salute you also. For me, the guiding philosophy is सितारों से जहां, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अब શું જોવું જોઈએ એઝ અ સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટર? એક તો એ જ જોવી જોઈએ કે એનો ગ્રોનો પોટેન્શિયલ કેટલો છે। માણસ 21 વર્ષનો થાય ને પછી હાઈટ ના વધે, 22 વર્ષનો થાય ને પછી હાઈટ ના વધે, પણ માણસ જો 14-15 વર્ષનો હોય તો કે આ જો ઊંચો થશે ભાઈ, એ મનીષભાઈએ તાળી લીધું કે આ જો ઊંચો થશે। એટલે તો ગ્રોનો જે છે, યંગ એજ જે છે કંપનીની, અને બીજું કે સાઈઝ, ઓવરબર્ડન સાઈઝમાં નથી, હાથી જેવું નથી કે દોડી ના શકાય। કંપની હાથી જેવી ભારે નથી કે દોડી ના શકાય, એનો સેલ્ફ વેટ જ ના ઉચકાય કે જે બીજી કંપનીઓને ભારે પડે છે, કે કોઈ એવા મેન્યુફેક્ચરિંગ મોટા બર્ડન નથી। એની સાથે એ પણ નથી કે ટેકનોલોજી ના જોઈએ, પણ જે લોકો જેનું પોતાનું કામ કરે છે તેને કરવા દઈએ, એ બધાને ભેગા કરીને એક વસ્તુ બનાવીએ, અને એ કેપી એનર્જીએ કહ્યું, અને એ કેપી એનર્જીએ કર્યા પછી આજે જે 10-25 ફેબ્રુઆરીએ જે લોન્ચ કર્યો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીની અંદર 11.5% વધ્યા। ચીતાનું સ્પીડ દુનિયામાં સૌથી ફાસ્ટ હોય, દુનિયામાં કોઈ જાનવરની સ્પીડ હોય ને તો સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ પ્રાણી જે છે તે ચીતો છે।
પણ તમે જોશો તો એનું એક કે એક અંગ કામનું છે. એની આંખની આગળની બે લાઈનો એને દિશા નિર્દેશ કરે કે શિકાર કે બાજુ જઈ રહ્યો છે. એના કાન શિકારને સાંભળે છે. એવી રીતે એની જે ટેલ ખરી ને એ જ્યારે એને ટર્ન લેવો હોય તો એ દિશામાં તરત ફરી જાય છે. એટલે આ કંપનીની અંદર 4 પગ 2 આંખો કે શરીર નથી, પણ એની ટેલ પર બેઠેલા લોકો બી તરત દિશાને સૂચન કરી આપે છે કે આમ કરી દે. जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो હવે મનીષભાઈ જંગલના મોરને બીએસસી પર જઈને બતાવી દીધો છે અને આગળ જશે ઇન્શાઅલ્લાહ એવી આશા બી છે. અને મનીષભાઈ કહ્યું કે 1994 એક વિન્ડની કંપનીની અંદર એમણે ઇન્વેસ્ટ કરેલું, ત્યાં 10 લાખ ગુમાવ્યા. હું અહીંયાથી કહું છું કે 1 રૂપિયો ગુમાવવાની વાત તો છોડો, ઇન્શાઅલ્લાહ 1 તો 100 કમાવાની આશા રાખે. ગઈકાલે આવતા હતા સાથે તો મનીષભાઈ મને કહે કે આપણે બાંગ્લાદેશ છે અને નેપાળ છે આશીષ, એની અંદર શ્રીલંકા, પણ કે આપણે પાકિસ્તાનની અંદર પાવર નથી. મેં કીધું આપણે પાકિસ્તાનમાં પહેલો નાખવાનો, જ્યારે બી લડાઈ કરવી હોય સૈનિક નહીં મોકલવાના, પાવર ઓફ. બીજી ધંધો જ નહીં કરવાનો, પાવર જ બંધ કરી દેવાનો એ લોકો. સો વી આર ઓપન ફોર ઓલ. ઇન શોર્ટ વી આર ઓપન ફોર ઓલ. અને મનીષભાઈ બીજું એક ઉદાહરણ આપ્યું કે મડી વોટરની અંદર એટલે કે કાદવની અંદર આ એક લોટસ એટલે કે કમળ ખીલું છે. મનીષભાઈને કહે કે હમણાં કમળનો જ જમાનો છે. 2007 में मेरे पास स्कूटर था मनीष भाई, स्कूटर હતો સ્કૂટર 68 49 નંબર 3500 રૂપિયા. એને 2 વખત આમ નમાવે ત્યારે ચાલુ થાય. તે વખતે મારા શાળા છે અહીંયા રફીક કદાચ એ અહીંયા જ છે આટલામાં. એમને પૂછજો કે મેં બુકમાં એવું લખેલું કે આપણે 2003માં સ્કૂટર હતો ને 2007ની ડિસેમ્બરમાં આપણે મર્સિડીઝ લાવીશું જયભાઈ. અને 2007ની ડિસેમ્બરની 29 તારીખે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઈશ્વરની મહેરબાનીથી we have got the Mercedes. So this is the way we are putting our targets. कहने का मतलब मर्सिडीज नहीं, कहने का मतलब मर्सिडीज नहीं है. कहने का मतलब अगर टारगेट 2025 में 1000 मेगावाट का रखा है तो we will achieve it इंशाल्लाह. 1000 मेगावाट इज इक्वल टू टुडेस कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो 5000 करोड़ रुपया you will witness इंशाल्लाह. गोदाम से पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूं. उकाबी रूह मोहम्मद भाई, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है मंजिल उनको आसमानों में. ये जीवन है साहब, यहां उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे. यानी हम लोग जो है ना, कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये आप बात समझ लेना कि ये जो बिखरना होता है ना वो सिर्फ निखरने के लिए होता है. और इसी वजह से मैं आज कह रहा हूँ कि 250 मेगावाट विंड मिल का जो विंड फार्म का जो प्रोजेक्ट मिला है, उसके बाद दूसरा एक 300 का है, उसके बाद 1000 का, और आप बहुत नजदीक में वो चीजें देखोगे इंशाअल्लाह. इसलिए अब्दुल कलाम ने भी कहा कि इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. यानी हम लोग कोशिश करने वालों में है, इंतजार करने वालों में नहीं है. लगते हैं सब शांत स्वभाव के शांत, लेकिन हर एक के दिलों के अंदर, हर एक के पेटों के अंदर वो स्वामी साहब आग भरी हुई है. यही नहीं होती हाथों की लकीरें, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां. यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां. रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है. विदाउट मेहनत ये कोई चीज पॉसिबल नहीं है.
मैं आखिर में एक चीज कहूंगा सब लोगों से कि जिस तरह से डेडिकेशन के साथ टीम आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सारे लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, विश्वास आप लोगों का है और उस विश्वास के नाते ही मनीष साहब आपको हम लोगों ने लास्ट टाइम कहा था, लास्ट AGM में, और शायद रात को आपको हमने बताया था कि जब माइग्रेशन के टाइम पे कि हम लोग बहुत जल्द ही KP हाउस में भी शिफ्ट होंगे। आज का दिन सबसे खास और यादगार और हिस्टोरिकल दिन है, जब हमने अपने उस सपने को साकार होता हुआ देख रहे थे, जो हमने आज से करीब 6-7 साल पहले देखा था। आज वह मुबारक घड़ी आ गई जब हमारी कंपनी को नेशनल विजिबिलिटी BSE और विप्रो की टीम के द्वारा हासिल हो रही है। KPI ग्लोबल 2008 में कायम हुई थी और 2012 से सोलर के फील्ड में काम कर रही है। 2016 में पहला 5 मेगावाट कमीशन हुआ और आज वो 15 मेगावाट तक पहुंच चुका है और इस IPO की और PFC की मदद से ये 40 मेगावाट तक इंशाल्लाह जाएगा। ये जो यहाँ तक पहुंचे, मैंने पहले कहा वही आज अभी भी दोहरा रहा हूँ कि एंड इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। जितनी भी ये सोलर प्लांट को सक्सेस करने में जितनी भी तकलीफें आई या जो कुछ स्ट्रेस रहा, वो आज की तारीख में सब लोगों की मदद से वी आर इन अ वेरी गुड क्या कहते हैं हैप्पीनेस और बास मोमेंट में हमारी कंपनी है और एकदम एंथुसियास्टिक है कि जल्द से जल्द आप लोगों के सपोर्ट के साथ एकदम फास्ट आगे बढ़े और यू विल सी इंशाअल्लाह ये कंपनी कहां से कहां पहुंचेगी। वेरी गुड फ्यूचर। ये सारी चीजों को, मुनाफे को, टर्नओवर को, आपके ग्रोथ को, आपके विजन को सामने रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारी कंपनी माइग्रेट मेन बोर्ड पे इंशाल्लाह करेगी और सर्विस शुरू करेगी। 1000 का हम लोग टारगेट लेके बैठे हैं। हम सबको ये होगा कि ये 1000 मेगावाट का टारगेट लास्ट ईयर की अगर आप बात को सुनेंगे, लास्ट ईयर की AGM की स्पीच को हमारी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट प्रॉमिसेस वी हैव गिवन एंड इन दैट प्रॉमिसेस हम लोगों ने क्या अचीव किया। तो फॉर योर नॉलेज आप बाद में देख लेना, सुन लेना उस स्पीच को कि उसमें की गई सारी की सारी बातें 100 नहीं बल्कि 150% से मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने आपको दिया। इस मर्तबा भी हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर जो होगा वो लास्ट ईयर से भी बहुत ही ब्राइट होगा। फॉर दैट वी आर ऑन अ 6 मंथ हम लोग पहुंच चुके हैं। इस वजह से 100% कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि यू विल अचीव, वी विल अचीव फॉर यू पीपल इज मोर देन 100% फ्रॉम द लास्ट ईयर इंशाल्लाह। फ्री फिगर में आना यू नो के 99 इज अ नर्वस 90s होती है सबके लिए, चाहे वो तेंदुलकर हो चाहे दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर हो। लेकिन जैसे वो 100 क्रॉस करता है उसके बाद 200 पे पहुंचना या 300 पे पहुंचना इसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता है जितना 99 से 100 पे जाने के लिए होता है। अब आपकी कंपनी को 999 तक कोई नर्वसनेस नहीं आने वाली है। अब
1000 पे पहुंचने के लिए जो एक होगा उसमें नर्वसनेस आएगी 2025 में। लेट्स सी, उस वक्त भी हमारी टीम इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम सब मिलके इंशाल्लाह वो गोल भी हम लोग अचीव कर लेंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो केपी एनर्जी की है वो ये है मनीष भाई कि गुजरात के अंदर इस तरह का EPC आज तक तो कोई कंप्यूटर बना नहीं है, और आने वाले 5 साल अगर आज से शुरू करेगा तो वो शायद 5 साल के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तब तक हम लोग, मुझे लग रहा है कि 10,000 करोड़ का जो हमारा ख्वाब है, 1035 मेगावाट का हमारा जो हम लोगों ने सोचा है, वो उस ख्वाब को हम लोग हकीकत में इंशाल्लाह बदल के रहेंगे।